Hello and good morning to all of you. Welcome to class 11 history. So in the last class we had studied about the trading town in pastoral zones, and also I have shown you the structure of the palace of Mari of King Zimmerlin from 1810 to 1760. So now we move forward and try to finish the chapter today only. Cities in Mesopotamian culture. Mesopotamians valued city life in which people of many communities and cultures lived side by side. After cities were destroyed in war, they recalled them in poetry. So जो मेसोपोटामियंस थे उनके वहाँ पे सिटी का जो इम्पोर्टेंस थी या जो सिटी की जो वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा थी इन विच पीपल ऑफ मैनी कम्युनिटीज एंड कल्चर दे यूज टू लिव साइड बाय साइड मीन्स मेसोपोटामिया के अंदर जो सिटीज थी उसके अंदर अलग अलग कम्युनिटीज के लोग रहते थे, अलग अलग कल्चर के लोग रहते थे और सब एक दूसरे के आसपास पास पास रहा करते थे. आफ्टर सिटीज वर डिस्ट्रॉयड इन वॉर दे रिकॉल देम इन पोएट्री. और जब सिटीज जो हैं डिस्ट्रॉय हो गई वॉर के अंदर, लड़ाई के अंदर, जब सिटीज शहर जो है तबाह हो गए तो बाद में जो लोग थे वो उन शहरों के बारे में, उन सिटीज के बारे में कविताओं के माध्यम से बताया करते थे, यानी कि they recalled them in poetry. The most poignant reminder to us of the people of the pride Mesopotamians took in their cities comes at the end of Gilgamesh epic, which was written on 12 tablets. Gilgamesh is said to have ruled the city of Ur sometime after Enmarker, a great hero who subdued people for war and wild. He got a shock when his heroic friend died. He then set out to find the secret of immortality, crossing the waters that surrounded the world. After a heroic attempt, Gilgamesh failed and returned to Ur. There he considered himself by walking along the city wall back and forth. He admired the foundations made of fired bricks that he had put into place. It is on the city wall of Ur that the long tale of heroism and endeavor fizzles out. Gilgamesh does not say that even though he will die, his sons will outlive him, as a tribal hero would have done. He takes consolation in the city that his people had built. It means that after Enmerkar there was a, ऐसा माना जाता है एनमरकर के बाद में जो रूलर आया वो था गिलमिश, और वो एक बहुत अच्छा रूलर और एक बहुत बड़ा रूलर था वहाँ का. और एक तो उसको शौक लगा जब उसका एक जो कि बहुत अच्छा फ्रेंड था, जो कि बहुत अच्छा सोल्जर था, अपन उसको कहते हैं सेनापति था, उसकी डेथ था. और देन ही सेट आउट टू फाइंड द इमॉर्टलिटी. और फिर वो उसके बाद बाहर चला गया और शांति के साथ जीवन बिताने के लिए, बट वहाँ पर वो ज़्यादा दिन नहीं रह सका और उसके बाद फिर वो वापस से लौट करके जब अपने शहर के अंदर आया, उसके अंदर तो उसने जब अपने किले को देखा और उसकी फाउंडेशंस को देखा तो उसने इतना ज़्यादा एडमायर किया कि कैसे वो जो फायर्ड ब्रिक्स थी, जो कि ईंटें थी, जो जिनको कि पकाया गया था, वो किस अच्छी तरह से एक उसके किले को का किले की शोभा बनी हुई है. मतलब वो बहुत अच्छी तरह से डिजाइन हुई हुई उसके किले के ऊपर या उसके पैलेस, किले के अंदर जो पैलेस था उसके अंदर वो बहुत अच्छी तरह से लगी हुई है. ही एडमायर्ड द फाउंडेशन मेड ऑफ फायर्ड ब्रिक्स दैट ही हैड पुट इनटू प्लेस. इट इज ऑन द सिटी वॉल ऑफ, और सिटी वॉल जो थे उसके ऊपर बहुत ढंग से वो फायर्ड ब्रिक्स जमाई गई थी और उसका किला या फोर्ट जो भी था वो बनाया गया.
Then the next topic is the legacy of writing. While moving narratives can be transmitted orally, science requires written text that generations of scholars can read and build upon. Perhaps the greatest legacy of Mesopotamia to the world is its scholarly tradition of time, reckoning and mathematics. So, legacy of writing, साइंस के अंदर तो अपने को रिटन चीज़ें चाहिए जो कि स्कॉलर्स उसको बाद में भी स्टडी कर सकें. सो जो लेगेसी थी वहाँ की मेसोपोटामिया की, वो उसका ट्रेडिशन क्या था, स्कॉलर ट्रेडिशन था. मीन्स आपके पास जो भी है रिटन है वो स्कॉलर जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास तक वो चीज़ जानी चाहिए और वो जाती भी थी. तो ये स्कॉलरली ट्रेडिशन था एंड इट वाज अ स्कॉलर scholarly tradition of time, reckoning and mathematics. Dating around dating around 1800 BCE are tablets with multiplications and divisions table squares and square root tables and tables of compound interest. The square root of 2 was given as. Now dating around 1800 के आसपास जो थी उसके अंदर टैबलेट्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड स्क्वायर रूट जो थे वो टैबलेट्स के ऊपर लिखे हुए पाए गए और वो लिखे हुए मिले थे. So if you think this out, you will find that the answer जो अपने को दे रखी है ऊपर टेबल 1 + 24 डिवाइडेड बाय 60 + 51 डिवाइडेड बाय 60 स्क्वायर + 10 डिवाइडेड बाय 60 की पावर क्यूब. अगर अपन इसको देखते हैं तो इसका आंसर कितना आता है, इसका आंसर आता है 1.41421296. ओनली सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द करेक्ट आंसर. सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द करेक्ट आंसर जो है इसका वो क्या है 1.41421356. उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, अदरवाइज बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा डिफरेंट है. स्टूडेंट्स हैड टू सॉल्व प्रॉब्लम सच एज फॉलोइंग अ फील्ड ऑफ एरिया एंड सच इज कवर्ड 1 फिंगर डीप इन वाटर, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ वाटर. तो जो स्कॉलर्स थे उस समय, जो स्टूडेंट्स थे, उनको उनके सामने ये क्वेश्चंस भी आते थे कि एरिया को फाइंड करना, एरिया ऑफ अ फील्ड, जैसे अपन अभी भी मैथ्स के अंदर करते हैं, आप 8th 9th और 10th के अंदर करते हुए आए हैं, एरिया निकालना है, आपने एरिया निकाले हैं प्लस वॉल्यूम निकाला है. तो इस तरह के क्वेश्चंस जो वहाँ के स्टूडेंट्स थे उनके सामने भी आते थे कि जब जैसे पानी के अंदर पानी का ग्लास लिया या पानी का कोई बर्तन लिया, उसके अंदर फिंगर डाल दी और फिर स्टूडेंट से पूछा गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर. तो इस तरह से स्कॉलरली जो वहाँ पे ट्रेडिशंस थी वो चल रही थी, और मैथमेटिक्स और साइंटिफिक बोथ. द डिवीजन ऑफ द ईयर इनटू 12 मंथ्स अकॉर्डिंग टू द रेवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द, और ईयर को किसके अंदर डिवाइड कर दिया था, 12 मंथ्स के अंदर. ईयर वाज डिवाइडेड इनटू 12 मंथ्स अकॉर्डिंग टू द रेवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द, और किसके बेसिस पे, मून का रेवोल्यूशन अराउंड द. The division of the month into 4 weeks, the day into 24 hours and the hour into 16 minutes. और उसके बाद डिवीजन ऑफ द मंथ, एक महीना का डिवीजन किया 4 हफ्तों के अंदर, 4 वीक्स के अंदर. देन एक दिन का डिवीजन किया इनटू 24 आवर्स. देन अगेन आवर्स का डिवीजन किया इनटू 60 मिनट्स. ऑल दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड इन आवर डेली लाइफ, और जो आज भी अपन अपने डेली लाइफ के अंदर यूज में लेते हैं कि एक महीने के अंदर 4 हफ्ते होते हैं, एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, और और एक घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं. सो these time divisions were adopted by the successors of Alexander and from there transmitted to the Roman world, then to the world of Islam and then to the medieval Europe. और यही टाइम डिवीजन धीरे धीरे ट्रांसफर हुआ. सबसे पहले एलेक्जेंडर के जो सक्सेसर्स थे उन्होंने अडॉप्ट किया, एंड देन
It transmitted to the Roman world, then to the world of Islam, and then again it was transmitted into the medieval Europe. Got it? कोई क्वेश्चन करना है? Is there is any problem? Clear? Clear हो गया? Say yes or no on the chat option. Is it clear? Okay. So we are on the last paragraph of this chapter. We would be mistaken if we think that the preoccupation with the urban world of Mesopotamia is a modern phenomenon. Let us look finally the two early attempts to locate, the preserve, the text, and the traditions of the past. First, an early library means वहाँ पे library भी क्या थी? बना रखी थी. In the Iron Age, the Assyrians of the north created an empire at its height between 720 and 610 BC that stretched as far west as Egypt. The state economy was now a predatory one, extracting labor and tribute in the form of food, animals, metals, and craft items from a vast subject population. So it is a very simple paragraph. Iron Age के अंदर जो Assyrians थे वो 720 से 600 BC तक अपने पीक पर थे. उनका एम्पायर जो था बिल्कुल पीक पे चल रहा था, टॉप पे चल रहा था और बहुत बड़ा एम्पायर था. वेस्ट ऑफ इजिप्ट तक वो एम्पायर फैला हुआ था. स्टेट इकोनॉमी जो थी वो बेस्ट थी. एक्सट्रैक्टिंग लेबर वो लोग एक्सट्रैक्ट करते थे, लेबर खोजते थे. एंड ट्रिब्यूट टू इन द फॉर्म ऑफ फूड, एनिमल्स, मेटल्स, क्राफ्ट आइटम्स फ्रॉम अ वास्ट सब्जेक्ट ऑफ पॉपुलेशन. और जो पॉपुलेशन थी उसके जरिए वो लोग फूड, एनिमल्स, मेटल्स, क्राफ्ट आइटम्स, वो सारी चीज़ें क्या थी वो उपलब्ध हो जाया करती थी. क्योंकि जो पॉपुलेशन थी वो क्या थी, कुछ आर्ट बनाने के अंदर एक्सपर्ट थे, कुछ मेटेलिक मटेरियल्स बनाने में एक्सपर्ट थे, ठीक है, कुछ एग्रीकल्चर करते थे तो फूड का प्रोडक्शन हो जाता था. Copies were made of important texts such as Epic of Gilgamesh. The copier starting his name and writing the date. Some tablets ended with a reference to Ashurbanipal. और कई जो भी इम्पोर्टेंट टेक्स्ट थे हुआ करते थे, जो भी इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हुआ करते थे उन सब की क्या बनाई जाती थी, क्या उन सब की क्या हो जाती थी, या तो कॉपीज हो जाती थी या एक कॉपी और बना दी जाती थी. जैसे कि कॉपीज वर मेड ऑफ इम्पोर्टेंट टेक्स्ट, कॉपीज बनाई गई इम्पोर्टेंट टेक्स्ट की, सच एज द एपिक ऑफ गिलगिमेश. गिलगिमेश जो रूलर था. मोर इम्पोर्टेंट देयर वाज अ catalog going. A basket of tablets would have a clay label that read n number of tablets about exposium written by X. Ashurbanipal's library had a total of some 1000 texts amounting to about 30,000 tablets grouped according to the subject. तो ये जो लाइब्रेरी थी अजरबैनपैलेस की, ये लाइब्रेरी के अंदर कम से कम 1000 टेक्स्ट से लेकर के 30,000 तक टैबलेट्स भी वहाँ पे मौजूद थे जो कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ग्रुप्ड थे. गॉट इट? एनी क्वेश्चन? क्लियर? हाँ, क्या चीज समझ में नहीं आई? टैबलेट्स बेटा वो होते हैं जो जिसका सरफेस ऊपर से क्या होता है, जैसे कोई स्टोन हुआ उसका सरफेस क्या है, ऊपर से स्मूथ है. ज्यादातर क्या करते थे, मिट्टी के बनाते थे जिसका ऊपर क्या था, सरफेस स्मूथ होता था. जैसे आपने पटरा देखा है ना, पटरा के ऊपर का सरफेस क्या होता है, स्मूथ होता है. और जब फिर उसके ऊपर क्या करते थे वो लोग, लिखते थे. उसको क्या बोलते हैं, टैबलेट्स. टैबलेट्स आप मेडिसिन नहीं समझ लें, अपन
मेडिसिन को भी टैबलेट्स बोलते हैं। टैबलेट्स होता है एक फ्लैट सरफेस जिसके ऊपर राइटिंग की जा सकती है। मैक्सिमम वो मिट्टी से बनता था, क्ले से बनता था, गीली मिट्टी के ऊपर वो लिखते थे, फिर बाद में उसको क्या करते थे, उसको सुखा दिया करते थे। गॉट इट? क्लियर? Okay, so we have finished this chapter. If you feel any problem, आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर